Assalamu alaikum students. Open your bio book of 10th class, page number 4, टॉपिक नंबर 10.2। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बेटे। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट जो है वो कंप्लीटली मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमंस जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। In humans and other higher animals, the exchange of gases is carried out by the respiratory system. We can divide the respiratory system in two parts, the air passageways and the lungs. सिंपल पहले आपका क्या हुआ है कि जो भी आपके जैसे हम ह्यूमंस हैं ना, इंसान ह्यूमंस और जितने हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं बेटे वो कैरिड होती हैं किस सिस्टम के जरिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम के जरिए। क्या रिस्पायरेटरी प्लांट में हमने दो सिस्टम पढ़े थे, हम पढ़ के आए थे फोटोसिंथेसिस भी और रिस्पायरेशन भी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टम आ रहा है, दैट इज रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम को बेटे हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आता है आपका एयर पैसेज वे और एक आपके आते हैं लंग्स। तो पहले हम लोग जो आपका स्टडी करेंगे दैट इज एयर पैसेजवेज। The air passageways consist of the pod through which the outside air comes in the lungs, and after the exchange of gases, it goes out. This passage of air consists of following parts. The nose encloses the nasal cavity. It opens to the outside through the opening called the nostril. The nasal cavity is divided into two portions by a wall. Each portion is lined by fine hairs and mucus which filter the dust particle from the air. The mucus also moisten and warm the incoming air and keep its temperature nearly equal to that of the body. Next आपका आता है the nasal cavity open into larynx by mean of two small opening called internal nostril. Pharynx is the muscular passage and it's common to both food and air. It extends to the opening of the esophagus and larynx. The air goes from the pharynx into the larynx. We know that glottis is a narrow opening at the floor of the pharynx which lead into larynx. The larynx is a box made of cartilage. It is present between pharynx and trachea. It also called Weiss box. Underline this. Two pair of fibrous bands called vocal cords are stretched across the larynx. The vocal cord vibrate when the air passes through them. The vibration produce sound. इसको आप कॉमर्स में इनक्लोज कर लें, इस पूरे पैराग्राफ को, फर्स्ट वाले को, ठीक है। Larynx continues to the trachea, which is also called the windpipe. It is about 12 centimeter long tube. It lies in front of the esophagus. There are C-shaped cartilaginous rings in the wall of trachea. The cartilages keep the trachea from collapsing even when there is no air in it. On entering the chest cavity, the trachea divides into two smaller tubes called bronchi. Single bronchus. The bronchi also have cartilaginous plates in their walls. Each bronchus enters into the lung of its side and then divide into smaller branches. The bronchi continues dividing in the lungs until they make several fine tubes called bronchioles. The bronchioles progressively lose the cartilage as they become narrower. The bronchioles end as fine tubules called the alveolar ducts. Each alveolar ducts open into the cluster of pouches called alveoli. The alveoli from the respiratory surface in human body. Each alveolus is a sac-like structure lined by a single layer of epithelial cell. It is bound on the outside by a network of capillaries. The pulmonary artery of the heart contained in deoxygenated blood enters the lungs and branches into arterioles and then into capillaries which surround the alveoli. These then join together to form the venules which form pulmonary vein. The pulmonary vein carries the oxygenated blood back to the heart. पूरे प्रोसेस की मैंने आपको रीडिंग करके दिखाई। अब बेटे मैं आपको पूरा प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको खुद ड्रॉ करके बताती हूँ ताकि आप लोग पेपर में भी अच्छी डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकें। आप लोग मुझे देके डायग्राम ड्रॉ करो, देन डायग्राम के बाद हम एक एक ऑर्गन का फंक्शन जो है वो लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे, ठीक है। पहले आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है अपना नोज, ठीक है। नोज के बाद आपका यहाँ पे आ जाता है सारा आपने ओरल कैविटी बेटे।
ओवल कैविटी के बाद आपने यहाँ पे नीचे छोटी सी एक ओपनिंग बनानी है, देन आपने एक और ऐसे थोड़ा सा बनाओ और इसको आप लोग स्ट्राइट डबल करते जाओ, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर ले जाएंगे हम लोग, ये आपका नीचे, इसको आप लोग ऐसे ही दो पार्ट्स में, जैसे हम लोग सिंपल ब्रांचेस बनाते हैं, ऐसे ही अंदर की तरफ बेटे ले जाओ। ठीक है, इसको आप लोगों ने इसके साथ एक दूसरे के साथ क्या कर लेना है, ज्वाइन कर देना है। क्लियर है? लुक आउट बेटे, देखो कैसे आपने ज्वाइन करना है, ये देखें। डायग्राम हम बना लेना, फिर हम एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, एक एक पार्ट का फंक्शन लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे कि बेसिकली इस सब में हो क्या रहा है, ये मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, यहाँ पे आपने बेटे क्या बनाना है, यहाँ पे आपने लंग्स जो है उनको बेटे ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमारा एक लंग बन गया और यहाँ पे आपका आएगा सेकंड लंग। सिंपल डायग्राम, बहुत इजी है, मुझे देख के बनाओ तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, अब आप इसको हल्का सारा, आपने जैसे पहले भी आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि इसको हम थोड़ा सारा हाईलाइट कर देते हैं, शेडिट कर दो आप इसको थोड़ा सा अपनी डायग्राम को। ठीक है, इसके अंदर जो है वो नेटवर्क है प्रेजेंट। ठीक है, नेटवर्क, आप लोग भी इसके अंदर ऐसे ही नेटवर्क्स ऑफ वेन्स एंड जो कैपिलरीज है वो आप बनाते जाएं। और इनके एंड पे मैं एक बना के दिखाती हूँ, इनके एंड पे ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है। ये सिंपल डायग्राम है, इसकी पहले मैं लेबलिंग करूंगी बेटे, लेबलिंग करके हम एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी के बाद यहाँ पे आपको पता है आपके दो प्रेजेंट हैं विच इज नोन एज नोस्ट्रल्स। ठीक हो गया, नजर आ रही है बेटे डायग्राम आपको, नोस्ट्रल हो गया, नेजल कैविटी, नोस्ट्रल। फिर आपका बेटे ये चीज आती है आपकी फेरिंग्स, PHARYNX, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये आपकी आती है ओरल कैविटी, मतलब आपका माउथ। ठीक है, ओरल कैविटी के बाद ये जो चीज मैंने बनाई डेट इज एपिग्लॉटिस। ठीक है, डबल टी एपिग्लॉटिस में। फिर आपका ये जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे एक अलग सा, ठीक है, ये स्टार्ट में बिल्कुल इसके, ये दिस इज ग्लॉटिस। ठीक है, ग्लॉटिस के बाद आपकी ये जो पूरी आ रही है दिस इज ट्रैकिया। दीज आर लंग्स, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। लंग के बाद
ये ट्रैकिया डिवाइड होता है आपका ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकस एंड देन ब्रोंक्यूल्स, ठीक है? ये आपने इसको ऐसे ही मेंशन कर देना है, ठीक है? ब्रोंकस, BRONCUCHUS, ठीक है? ये जो ट्रैकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकस, ब्रोंकस आगे फर्दर डिवाइड हो गए मज़ीद छोटी-छोटी फाइन ट्यूब्स में, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल जो हैं वो एक डक्ट में ओपन होती हैं और उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटे? छोटा-छोटा आपका स्ट्रक्चर है व्हिच इज़ नोन एज़ एल्वोलाई, ठीक है? ये होगी हमारी डायग्राम कंप्लीट। इसको गौर से देखो। क्लियर है? नज़र आ रहा है बेटे आपको डायग्राम? ठीक है? अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक-एक ऑर्गन का फंक्शन बताऊँगी और आपको समझाऊँगी। चलें स्टार्ट करते हैं। बेटे हमने आज टॉपिक शुरू किया है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग में गैसेस जो हैं वो किस तरह एक्सचेंज होती हैं, क्या फिनोमेना है, किस तरह गैसेस हमारे अंदर जाएगी कोई भी गैस और किस तरह वो जो है बाहर आएगी। ह्यूमन बीइंग इंसान का जो पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो हमने आज स्टार्ट किया है। पहली रिस्पायरेटरी सिस्टम को बेटे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है पैसेज एयर पैसेजवेज और एक है लंग्स। जो टॉपिक हमने आज पढ़ाना है, जो मैंने आपको भी शुरू करवाना है, दैट इज़ एयर पैसेजवेज। ठीक है? ये मैंने आपको बना के दिखा दिया। एयर पैसेजवेज क्या है बेटे? एयर पैसेजवेज कंसिस्ट ऑफ वो पार्ट्स हैं जिसमें एयर जो है वो अंदर जाती है, लंग्स में जाती है और एक्सचेंज होने के बाद वो बाहर भी आ जाती है। और इस पूरे प्रोसेस में कौन-कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो सारी अभी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ आपकी आती है वो आती है आपकी नेज़ल कैविटी। क्या आती है बेटे? गौर से सुनो। सबसे पहले जो चीज़ आएगी दैट इज़ नेज़ल कैविटी। आप जब अपने नोज़ को गौर से देखो तो उसमें 2 पोर्स हैं, 2 ओपनिंग्स हैं। ये जो 2 नोज़ तो एक ही है ना, लेकिन उसमें ओपनिंग 2 हैं। ये जो 2 ओपनिंग्स हैं जो आउटसाइड से आपको नज़र आ रही हैं, इन 2 ओपनिंग्स को बेटे हम लोग क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल्स कहते हैं। इस टाइम हम किसकी बात कर रहे हैं? हम नोज़ की बात कर रहे हैं। तो जो ओपनिंग है वो क्या है? उसको हम नोस्ट्रिल कह लेते हैं। नोस्ट्रिल जो है 2, मैंने आपको पहले बता दिया, 2 नोज़ जो है हमारा सेंटर से एक वॉल के ज़रिए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। उनको हम लोग क्या कह रहे हैं? नोस्ट्रिल्स कह रहे हैं। नोस्ट्रिल्स के नोज़ के अंदर आपके बेटे फाइन हेयर्स प्रेज़ेंट होते हैं, छोटे-छोटे से बाल प्रेज़ेंट होते हैं और साथ म्यूकस प्रेज़ेंट होती है। जब आपकी एयर जब आप एयर जो है हमारी हर टाइम हमारे नोज़ के ज़रिए जो है वो अंदर जा रही है, ठीक है? तो नोज़ में जब एयर जाती है तो वहाँ पे क्या चीज़ प्रेज़ेंट होती है? मैंने आपको बताया हेयर प्रेज़ेंट होते हैं और म्यूकस प्रेज़ेंट होता है। तो उस म्यूकस का फंक्शन क्या है? उन हेयर्स का फंक्शन क्या है कि हेयर्स की वजह से डस्ट जो है वो नोज़ के अंदर ट्रैप हो जाती है। जो हेयर्स है ना वो डस्ट को रोक लेते हैं, समझो फ़िल्टर कर देते हैं, रोक लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और म्यूकस के अंदर वो डस्ट मिल जाती है और जिस्म के हमारी बॉडी के अंदर जो है वो नहीं जाती। जो डस्ट जितनी भी होती है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे म्यूकस के अंदर मिल के नोज़ के अंदर ही रह जाते हैं और जो बेटे एयर होती है वो जो है वो फिर आगे फर्दर जो अभी हमने अगला स्ट्रक्चर पढ़ना है वहाँ पे जो है अंदर की तरफ जो है डाउनवर्ड एयर जो है मूव मूव कर जाएगी। तो इसके अलावा म्यूकस का एक फंक्शन तो मैंने ये बता दिया कि हेयर का फंक्शन बता दिया कि आपको वो एयर जो हेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं बेटे? वो आपके डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर रहे हैं, रोक रहे हैं, पकड़ रहे हैं और फिर आपका फंक्शन आता है म्यूकस का। इसके अंदर 2 चीज़ें होगी ना नोस्टिस के अंदर, एक तो आपके हेयर्स थे और दूसरा क्या मैंने बता दिया इसके अंदर म्यूकस है। अब म्यूकस का फंक्शन मैं आपको बता रही हूँ। म्यूकस का क्या फंक्शन है? म्यूकस जो है एयर को मॉइस्चर करता है और जो इनकमिंग एयर है, जो आपके नोज़ के अंदर एयर आ रही है उसको क्या करता है बेटे? वार्म करता है, गर्म करता है। इसके टेम्परेचर को हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल लाने की कोशिश करता है। क्या? म्यूकस। ये म्यूकस का फंक्शन हो गया। आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ म्यूकस? तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? ये 2 चीज़ों के फंक्शन हमने पढ़ लिए। आगे आता है आपकी अब एयर, वो एयर जो कि डस्ट से साफ हो चुकी है, उसमें डस्ट नहीं है, जो कि आपके उसका टेम्परेचर भी मॉडरेट हो चुका है, जो कि मॉइस्चर हो चुकी है। वो सारी की सारी बेटे एयर कहाँ आएगी? नेजल कैविटी से सारी की सारी आएगी फेरिंग्स में। कहाँ आएगी बेटे? फेरिंग्स में, ठीक है?
फेरिंग्स क्या चीज़ है? अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम अब फेरिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फेरिंग्स बेटे क्या चीज़ है? फेरिंग्स एक पैसेज है, एक रास्ता है, जो कि खाने के लिए भी, फूड के लिए भी यूज़ होता है और एयर के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है? एक रास्ता है, एक पाथवे है। अगर आप खाना खाते हो ना, तो वो भी फेरिंग से ही गुज़र के जाता है। अगर आप लोग हवा लेते एयर जो है इन आ रही है, वो भी इधर से ही गुज़रेगी और फिर जो खाना है, वो तो ईसोफेगस में चल जाएगा, एयर जो है, वो आगे ट्रैकिया में जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब एयर जाती है तो यहाँ पे बेटे एक एयर ने फेरिंग से लेरिंग्स में जाना है, ठीक है? द एयरिंग यहाँ से लेरिंग्स है, ठीक है? यहाँ पे आपने एक कोड था, आपकी बुक में मेंशन नहीं है, मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, दैट इज लेरिंग्स, LARYNX बेटे। फेरिंग से आपकी एयर लेरिंग्स में जाएगी। लेरिंग्स में यहाँ पे बेटे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग ग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर जो है ना बेटे, एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक ओपनिंग है, ठीक है? किसके बिल्कुल नैरो ओपनिंग ऑन द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स, ठीक है? फेरिंग्स के ऊपर जो कि फेरिंग्स के ऊपर एक ओपनिंग है, ठीक है? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर जो है, वो क्या चीज़ प्रेज़ेंट है? ग्लॉटिस के ऊपर एक कवरिंग प्रेज़ेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, सपोज़ करो ये जो मैंने समझो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको मैंने फेरिंग्स कह दिया। फेरिस के साथ ही मैंने आपको बताया था कि 2 ट्यूब्स इन्वॉल्व हैं, एक इसोफेगस है और एक आपकी क्या चीज़ है, एक आपकी थी लेरिंग्स थी। एक साइड से खाना जाना है इसोफेगस में, एक साइड से हवा जानी है लेरिंग्स के अंदर। तो अब जब हम खाना खाते हैं, तो जो हमारी फूड होती है, फूड पार्टिकल कभी भी हमारे लेरिंग्स के अंदर यानी कि सांस की नाली में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? व्हाई? क्योंकि बेटे यहाँ पे एक सुराख, एक ट्यूब प्रेज़ेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लॉटिस, ठीक है? जैसे ये सपोज़ ये ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के ऊपर एक कवरिंग लगी होती है, ठीक है? तो जब कोई भी सपोज़ मैंने खाना खाया, कोई फूड पार्टिकल अंदर गया है, तो ये जो ग्लॉटिस की कवरिंग है, जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, ये फ़ौरन बंद हो जाता है। ठीक है? ये फ़ौरन बंद हो जाता है। जब आप खाना खा लेते हो, हवा अंदर जानी है तो ये खुल जाता है, जब खाना खाना है तो ये बंद हो जाता है। ये ट्यूब क्या है? ये क्या आपकी ग्लॉटिस होगी, जो इसकी कवरिंग है वो क्या होगी? वो एपिग्लॉटिस होगी। एपिग्लॉटिस तब बंद हो गया जब आपने फूड खाना है। क्लियर हो गया? ये एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस की समझ आ गई बेटे आपको? इसके बाद फेरिंग्स के बाद जो अगली चीज़, अगला हमारा फिनोमेना आता है, जो अगला पार्ट आता है, अगला ऑर्गन आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेरिंग्स। क्या कहते हैं बेटे? लेरिंग्स। लेरिंग्स को आम लैंग्वेज में हम लोग बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉक्स, यानी कि वॉइस बॉक्स भी इसको आम लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं। लेरिंग्स इज जस्ट लाइक अ बॉक्स, जो कि फेरिंग्स और ट्रैकिया, ये फेरिंग्स है, ये ट्रैकिया, ये दो पाइप है, एक ऊपर वाला फेरिंग्स है, नीचे वाला ट्रैकिया है। इन दोनों के दरमियान में क्या चीज प्रेजेंट है बेटे? लेरिंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है? लेरिंग्स के अंदर दो पेयर्स होते हैं, दो पेयर्स होते हैं। किसके? दो पेयर्स होते हैं, बैंड्स के पेयर्स होते हैं। क्या बेटे? बैंड्स के पेयर होते हैं, जिनको हम लोग वोकल वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, जो कि हमारी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से हम बोलते हैं। ये जो मैं बोल रही हूँ ना बेटे, मेरी आवाज आपको आ रही है, एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये किसकी वजह से होती है? ये लेरिंग्स के अंदर साउंड बॉक्स प्रेजेंट है, उसकी वजह से होती है। और इसके अंदर क्या चीज है? इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है। क्या है? वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है। वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से बेटे क्या चीज प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। ये भी आपने याद रखना है। मैंने आपको क्या बता दिया? हमने पढ़ लिया लेरिंग्स। अब देखो, लेरिंग्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। तो आपने बताना है कि लेरिंग्स के अंदर जो है वोकल पेयर्स, टू पेयर्स हैं। किसके? फाइबर, एक ब्रांड, छोटा सा बैंड है, फाइब्रस, यानी कि सॉफ्ट सॉफ्ट सा बैंड है, जिसको हम लोग वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। ये वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करते हैं, ये वाइब्रेट कब करते हैं? हाउ दे वाइब्रेट, ये पता होना चाहिए। जब हवा हवा एयर इधर से अंदर से गुजरती है ना, तो उसकी वजह से वाइब्रेशन होती है, टकराती है। हवा यहाँ पे लेरिस में टकराती है, जब हवा यहाँ पे टकराती है तो वाइब्रेशन होती है। उस वाइब्रेशन से बेटे क्या चीज प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, तो उसका आंसर आपने ये लिखना है, जो मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया? अब आगे आ जाएगा, लेरिंग्स भी खत्म हो गया, फेरिंग्स पढ़ लिया, लेरिंग्स पढ़ लिया, ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस पढ़ लिया। अब हम आगे आते हैं, लेरिंग्स आपका एक लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर में जाके खुलता है, जिसको आम लैंग्वेज में हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे?
विंड पाइप, ठीक है। इसका वैसे इसकी टर्मिनोलॉजी या इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज ट्रैकिया। क्या कहते हैं इसको? ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया जो है एक लॉन्ग ट्यूब है और इसके साथ ही एक और ट्यूब भी होती है जिसको हम लोग ईसोफेगस कहते हैं। वो डाइजेशन में हेल्प आउट करेगी, वहीं पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके इसकी जो स्ट्रक्चर है बेटे, इसका स्ट्रक्चर जो है सी शेप्ड कार्टिलिजीनियस जो है इसकी वॉल है, ऐसी वॉल है, ये देखो जैसे मैंने बनाई है ना ऐसे करके, ऐसे ऐसे बेटे ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज सी शेप कार्टिलिजीनियस स्ट्रक्चर, ठीक है। और ट्रैकिया का मेन काम क्या होता है? ये जो कार्टिलिजीनियस स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर ऐसा भी तो हो सकता था ना, ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटे ये स्ट्रक्चर, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से जो है, जब यानी कि इसके अंदर जब एयर ना हो कभी, तो क्या होता है? कोलैप्स होने से, इसको टकराने से, डैमेज होने से जो है, इस स्ट्रक्चर की वजह से डैमेज नहीं होता, कोलैप्स स्ट्रक्चर इसका नहीं होता। ये स्ट्रक्चर का फंक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये आ गया ट्रैकिया। अगला अगले टॉप अगला जो आपका ऑर्गन है उसमें हम आते हैं। ईच ट्रैकिया जो है वो दो ब्रांचेस में, ये ट्रैकिया आ गया। हर ट्रैकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ट्रैकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। हर ब्रांच एक स्पेशलाइज ऑर्गन के अंदर चली जाती है। इस ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? ये लंग्स हैं। हमारे अंदर दो लंग प्रेजेंट है, एक राइट लंग है, एक लेफ्ट लंग है। एक आपका ब्रोंकस लेफ्ट ट्रैकिया जो है लेफ्ट में चला जाएगा, एक ट्रैकिया आपका जो है वो राइट लंग में चल जाएगा। जब ट्रैकिया लंग्स के अंदर चला जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? ब्रोंकस कहते हैं। हर ब्रोंकस फर्दर डिवाइड हो जाता है इनटू शॉर्ट स्मॉल ट्यूब, ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है लेकिन वो उनका डायमीटर और स्मॉल हो जाता है। तब उनको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। बेटे क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये नैरो हो जाते हैं। नैरो का मतलब होता है कि जो इनके अंदर का गैप है ना वो और छोटा होता जाता है अंदर से, जैसे पाइप है, स्ट्रॉ है, और बारीक ले लो और बारीक ले लो। पहले चौड़ा था, बड़ा था, फिर और नैरो हुआ, और उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में जाके जो है ये और नैरो हो जाता है, ठीक है। हर ब्रोंक्यूल्स, अब ये ब्रोंक्यूल्स है, हर ब्रोंक्यूल एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में जो है वो एंड होती है। इसके एंड पे एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि छोटे-छोटे पाउचेस यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह का जैसे मैंने बनाया है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? एल्वोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वोलाई कहते हैं। समझ आ गई है? अब हम लोग एल्वोलाई के बारे में पढ़ें। व्हाट इज एल्वोलाई? एल्वोलाई जो है ये सैक लाइक यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके ऊपर जो है एक लाइनिंग होती है, इसके ऊपर एक लाइनिंग है, ठीक है। जो एल्वोलाई है ना बेटे, इसके ऊपर एक लाइनिंग प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह की थिक लाइनिंग है। इस लाइनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल, ठीक है, आपने ऐसे ही लिखना है, LIAL, एपिथेलियल सेल्स। दे आर, इसकी जो लाइनिंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे? एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। और इसके अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होता है। क्या होता है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। और यही वो जगह है, यही वो साइट है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है बेटे होती हैं। होता क्या है? अब ये तो हमने सारा का सारा आपकी कंस्ट्रक्शन, मतलब कैसा था, क्या कैसा बना हुआ था, ये पढ़ा, और एक एक ऑर्गन का मैंने आपको फंक्शन बताया। अब आपका जो पूरा पैसेज वेज है, यहाँ पे अब हो क्या रहा है, ठीक है। होता क्या है कि जब बेटे हम लोग आपके ब्लड में ना, हार्ट में जो है, हार्ट से हमारे एक आर्टरी आती है जिसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। वो हार्ट से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके लंग्स में लेके आती है। कहाँ लेके आती है? लंग्स में। कहाँ? हार्ट से। कहाँ से बेटे? हार्ट से सारा ब्लड आता है। कहाँ आता है? लंग्स में आता है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा हमारा लंग्स में आता है। लंग्स में आके ये वो जगह है एल्वोलाई, ये वो साइट है जहाँ पे सारा फंक्शन होना है। यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है। और यहाँ पे आपकी कौन सी गैस आ रही है? ऑक्सीजन आ रही है। ये सारी की सारी ऑक्सीजन जो है इस साइड पे आपके ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है। और ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये अब किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, क्योंकि इसके अंदर
अब ऑक्सीजन शामिल होगी ना, तो अब ये ब्लड क्या बन गया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, लेकिन यहाँ पे आके ये क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब यही ब्लड जो है आपके लंग्स से वापस जा रहा है, किसके ज़रिए वापस जा रहा है? पल्मोनरी वेन के ज़रिए जा रहा है। आया किसके ज़रिए था? पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए आया था, लेकिन वापस किसके ज़रिए जा रहा है? पल्मोनरी वेन के ज़रिए वापस हमारे हार्ट में चला जाता है, और हमारे हार्ट में अब ये कौन-सा ब्लड चला गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये चला गया। ये सारा प्रोसेस जो बेटे मैंने आपको आज बताया डिटेल से, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। होप करती हूँ कि आपको सारा इस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एक दफ़ा मैं दोबारा इसको रिकॉल करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ज़रा श मेन पॉइंट्स में हम दोबारा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। पहले मैंने आपको सबसे पहले हमने क्या बताया है, यहाँ पे हमारा नोज़ यानी कि नेज़ल कैविटी प्रेज़ेंट थी। नेज़ल कैविटी में 2 तरह की ओपनिंग थी, दरमियान में मेम्ब्रेन थी। इस मेम्ब्रेन से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, व्हिच इज़ नोन एज़ नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो है हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट थी। हेयर का मेन फंक्शन क्या था कि डस्ट को ट्रैप कर रहा था, और म्यूकस का मेन फंक्शन हमने क्या पढ़ा था कि म्यूकस जो है वो एयर को मॉइस्चन कर रही थी, और दूसरा क्या कर रही थी, उसका टेम्परेचर जो है वो बैलेंस कर रही थी, हमारी बॉडी के जो है इक्वली जो है एयर का टेम्परेचर लाने की कोशिश कर रही थी। और फिर हमने क्या पढ़ा कि सारा का सारा नेज़ल कैविटी से सारी एयर जाती थी फेरिंग्स में। फेरिंग्स में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 चीज़ें, फेरिंग्स के बाद सारी की सारी एयर जो थी वो लेरिंग्स में जाती थी, ठीक है? लेरिंग्स में मैंने आपको बताया कि लेरिंग्स के साथ ही जो है एक और पाइप भी आपका स्टार्ट होता है, दैट इज़ ईसोफेगस, जो हमारी हम लोग डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेज़ेंट थी जिसको हमने क्या कहा था, ग्लोटिस। तो जब हम लोग खाना ग्लॉटिस के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट थी, दैट इज नॉन एज एपिग्लोटिस। जब आप लोग खाना खाते हो तो ये कवरिंग जो है यानी कि एपिग्लोटिस ऐसे कवर हो जाती है, और आपका खाना फिर आपके एयर पैसेज वेज, जो सांस की नाली है, जो एयर का वे जो पैसेज है उसके अंदर नहीं जाती। और जब आप लोगों ने खाना खा चुके होते हो, जब एयर अंदर जानी है, तब एपिग्लोटिस जो है वो ओपन हो जाता है, और आपकी सारी की सारी एयर जो है वो कहाँ चल जाती है, फेरिंग से लेरिंग्स में चली जाती है। लेरिंग्स जो है इसका दूसरा नाम जो था, वॉइस बॉक्स भी इसको कहते थे। ये जो है एक स्पेशल टाइप का कार्टिलेज का बना हुआ था, और ये कहाँ प्रेजेंट था बेटे, ये ट्रैकिया और फेरिंग्स के दरमियान में प्रेजेंट था। इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते थे। इसके अंदर जो छोटे छोटे से बैंड्स प्रेजेंट थे, जिनको हम लोग वोकल कॉर्ड्स कहते थे। क्या कहते थे? वोकल कॉर्ड्स कहते थे। जब एयर यहाँ से गुजरती थी तो यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और उसी वाइब्रेशन से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती थी, साउंड प्रोड्यूस होती थी। तो लेरिंग्स वो ऑर्गन है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर हो गया? उसके बाद लेरिंग्स के बाद एक और आपके जो है पैसेज खुलता था, एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, लेकिन कॉमनली इसको हम लोग विंड पाइप भी कहते थे। इसका स्ट्रक्चर जो था वो कार्टिलेजिनियस सी शेप कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर था, और इस स्ट्रक्चर का मेन पर्पस क्या होता है, स्ट्रक्चर ऐसा क्यों था? ये स्ट्रक्चर इसलिए ऐसा था ताकि जो ट्यूब्स हैं, जो ट्रैकिया है, वो आपस में कोलैप्स ना करे जब वहां पे एयर ना हो, ठीक है? फिर हर ट्रैकिया मैंने आपको बताया था 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। हर ब्रांच उसकी लंग्स के अंदर जो है वो जाके खुलती है। हमारी बॉडी में 2 लंग्स प्रेजेंट थे, एक राइट लंग था, एक लेफ्ट लंग था, ठीक है? तो ये जो है आपका जो है मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो है एक राइट में खुलेगा, और एक जो इसकी ब्रांच है वो लेफ्ट में खुलेगी। जब ये राइट और लेफ्ट में जाते हैं तो इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको ट्रैकिया को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकस कहते हैं बेटे। हर ब्रोंकस जो है वो ट्रैकिया से नैरो हो जाता है। ट्रैकिया से इसकी जो डक्ट की जो अंदर की ओपनिंग है वो थोड़ी-सी शॉर्ट हो जाती है, कम हो जाती है, डायमीटर कम हो जाता है, ठीक है? उसके बाद ब्रोंकस का डायमीटर मज़ीद कम हो जाता है, ठीक है? जब मज़ीद कम हो जाता है, वो और नैरो हो जाता है और तंग डक्ट्स हो जाती हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स जो हैं वो एंड उनका होता है एक स्पेशलाइज़्ड स्ट्रक्चर पे, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? एल्वोलाई कहते हैं। एल्वोलाई स्पेशलाइज़्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर एक स्पेशलाइज्ड लाइनिंग जो है प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे? एपिथेलियल सेल कहते हैं। और इसके अंदर जो है नेटवर्क होता है, एक जाल बिछा होता है, एक नेटवर्क होता है, किस चीज का बेटे? कैपिलरीज का। और यही वो साइट है, यही वो जगह है जहाँ पे तमाम की तमाम जो है गैसेज़ एक्सचेंज होती हैं। अब ये तो हमने पूरा इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया और उसके फंक्शंस पढ़ लिए। अब पूरा प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है कि आपके हार्ट से बेटे तमाम का तमाम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एक आपकी आर्टरी होती है। कौन-सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है? आपने याद रखना है, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए तमाम का तमाम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किधर आता है बेटे? वो लंग्स में आता है। क्यों आता है? फॉर ऑक्सीजनेशन, ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो सके।
तो यहाँ पे सारा का सारा ब्लड आपका आ जाएगा। कौन-सा ब्लड आ गया? डीऑक्सिनेटेड ब्लड आ गया। यहाँ पे क्या चीज़ प्रेज़ेंट थी? यहाँ पे आपकी प्रेज़ेंट थी बेटे ऑक्सीजन। ये सारी ऑक्सीजन ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है और ये सारा फ़ंक्शन कहाँ हो रहा होता है? ये सारा फ़ंक्शन एल्वेओलाई के अंदर होता है। अब ये जो ब्लड था, ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, अब सारा का सारा जो है, दोबारा एक वेन के ज़रिए, उस वेन का नाम क्या है बेटे? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के ज़रिए दोबारा सारा ब्लड जो है हमारे हार्ट के अंदर जो है वो चला जाएगा और हार्ट से फिर सारी बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये सारा आज का हमारा टॉपिक था। ये मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की, ठीक है? ये आपने पढ़ना है। ये तो था स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बना के दिखाया था, जो आपने पेपर में बनाना था। बेटे एक्चुअल स्ट्रक्चर जब आप देखते हो विद कलर और सारा कुछ जो आपको नज़र आता है हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम देखें तो बेटे वो समवट इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? ऐसे मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आप देखो तो ये नेज़ल कैविटी जो है, ये भी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल्स टाइप पे है, ठीक है? फिर आपका ये नेज़ल कैविटी है, इसको 2 में हमने डिवाइड कर दिया। ये ओरल कैविटी, यहाँ सारा हमारा माउथ आ रहा है, टंग आ रहा है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करो, ये फेरिंग्स है और ये एपिग्लोटिस है। मैंने बताया था ना, एपिग्लोटिस के बाद आपकी प्यास क्या आ रही थी? लेरिंग्स आ रहा है। क्या आ रहा है? लेरिंग्स आ रहा है। लेरिंग्स के बाद देखो मैंने आपको कार्टिलेज स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। अगर आप देखो तो वो बेटे जब आप रियल पिक्चर देखें ना, तो वो ऐसी होती है इसका स्ट्रक्चर। ट्रैकिया, ट्रैकिया जब डिवाइड होते हैं ब्रोंकस में, ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स में, और ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। यहाँ पे एक और कवरिंग आपको बता रही है प्लूरा, ये आपके उसमें बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है एक, जो लंग्स के इर्द-गिर्द जो है बेटे होती है। और हमारा लंग जो है ये सारा जो है इसको रिब्स ने कवर किया होता है, ठीक है? रिब्स यानी कि डायफ्राम के अंदर जो है ये प्रेज़ेंट होती हैं, ठीक है? ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर था, ये वो था जो आपने पेपर में ड्रॉ करना है। फिर बेटे आपका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ भी मेंशन की थी, मैंने आपको पढ़ाई थी, आपकी बुक में भी है। मैंने आपको बताया था कि जो गैसेस एक्सचेंज होती है ना बेटे, वो सारी की सारी एक स्पेशलाइज़्ड स्ट्रक्चर में होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्वोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वोलाई कहते हैं। आपकी बुक में एल्वोलाई का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, ठीक है? लेकिन वो इतना क्लियर नहीं है, मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ। देखो बेटे, दिस इज़ एल्वोलाई। ये बहुत छोटी होती है, ऐसे तो नज़र नहीं आती, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और ये आपको जो है क्लियरली आपको बड़ा करके जो है इनलार्ज करके दिखाया गया है। ये है एल्वोलाई, ठीक है? ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे तमाम की तमाम गैसेज़ एक्सचेंज होती हैं। ये यहाँ से कहाँ से शुरू हो रहा है? ब्रोंक्यूल्स, मैंने बताया था ना ब्रोंक्यूल्स इस पे एंड होंगी, तो ये वो एल्वोलाई है। यही वो साइट है जहाँ पे जो है वो सारी की सारी आपकी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम एल्वोलर सैक कहते हैं। इसके अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है। क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है। मैंने आपको कहा था कि सारा का सारा ब्लड इसके अंदर आ रहा है। ये देखो, ये ब्लू लाइन जो मेंशन है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और जो जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, इसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो जाती है, तो सारा का सारा ये एक वेन है। ये कौन-सी वेन है? पल्मोनरी वेन के ज़रिए वापस जाएगा, कहाँ जाएगा? आपके हार्ट के अंदर वापस चला जाएगा, ठीक है? और ये मैंने आपको एल्वोलाई का स्ट्रक्चर बता दिया ताकि आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाए। ये जो ब्लू लाइन है ना, ब्लू चीज़ है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ये बेटे आर्टरी है, ठीक है? और ये जो रेड आपको शो किया हुआ है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वापस जा रहा है, अब ऑक्सीजनेशन उसकी हो चुकी है और ये वापस जा रहा है आपके हार्ट की तरफ। तो बेटे आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आपको जो भी चीज़ समझ ना आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आपने मेरे से पूछना है। आप लोग अगर बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़ बेटे।